Hello and welcome to the next chapter of Maths, chapter number 6, Lines and Angles. I want all of you to keep your notebooks and pens with you. In between, I'm going to give a lot of information. So, you have to take notes. That's very, very important for this chapter. Okay, our geometry has formally started. We have started with geometry, which is one of the most, you can say, important part of class 9 syllabus. See, you have studied geometry up to class 8, but in class ninth, geometry goes to another level, right? Because the geometry which we are going to study in class ninth is basically proof geometry. Okay, no more just calculations, or you can say uh, simple terms associated with geometry. There are going to be complex situations where you have to take help of visualization, and you have to prove a certain things, and those proofs can get really tricky at times. So please understand that geometry is not a subject which you will memorize certain things and go and write your exam. No, you will need a lot of logic for solving this proof geometry, specifically proof geometry, and that is a huge chunk of your 9th standard syllabus. Now onwards, you can say in mathematics we'll be encountering mostly geometry chapters. So that's the first one is lines and angles, then there is congruency of triangles, then there is so that's first term, then second term quadrilaterals, areas of triangles and parallelograms, then circles. So these all big chapters are under geometry, and they all have proof theorems and things associated with it. So let's begin without wasting any time. The first definition is about an angle. So what is an angle? Please take a note of this. As you can see in front of your screen, angle is formed when two rays originate from the same end point. So this is the end point. First ray is OA, second ray is OB. They both have the same common end point. When two rays originate in different directions, they form from the same endpoint, they form an angle between them. So the space between two rays you see over here is known as angle. And how do you write the name of the angle? So this name of the angle can be written as angle AOB or angle BOA or simply angle O. तो जो मिडिल में तुम्हारा एंड पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट, दैट शुड बी इन मिडल ऑलवेज. तुम यहां से शुरू करो एंगल का नाम लिखना, या यहां से शुरू करो, ए ओ बी लिखो, बी ओ ए लिखो, लेकिन ओ मिडल में ही होना चाहिए, क्योंकि ओ पे एंगल बन रहा है. ठीक है, कुछ कुछ लोग इसको सिर्फ सिंगल लेटर में लिख देते हैं, एंगल ओ. ये करेक्ट है बट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है. तो ज्योमेट्री में जब भी एंगल का नाम हम लिखेंगे, वी विल एनकरेज कि आप 3 लेटर नेम लिखो एंगल का. बहुत लोगों को एंगल को नेम करना भी नहीं आता है. 9th में मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं जिनको एंगल को नेम करना नहीं आता, कभी वहां पे ध्यान नहीं दिया. बट इट्स ओके, फॉरगेट इट. अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो भी तुम यहाँ पे अभी सीख सकते हो. तो जैसे मैंने बताया, एंगल का नेम 3 लेटर्स में होना चाहिए. जैसे तुम स्कूल में जाते हो या फिर कोई ऑफिशियल जगह पे जाते हो और तुम्हें कोई अपना नाम पूछता है, तो तुम क्या बोलते हो? मेरा नाम चिंटू है. तुम ऐसा घर का नाम बोलते हो क्या? नहीं, तुम अपना पूरा नाम बोलते हो. योर नेम, योर मिडिल नेम, योर सरनेम, और योर सरनेम, योर योर ओन नेम, एंड देन योर फादर्स नेम, राइट?
तो ऐसे करके तीन तुम्हारे जो पूरा नाम को डिस्क्राइब करने वाले चीज़ें हैं, दैट इज़ योर ओन नेम, योर फादर्स नेम, योर सरनेम, ये तीनों की ज़रूरत है क्योंकि हम ऑफिशियल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वैसे ही एंगल का नाम जब हम लिखते हैं तो ये तीनों लेटर्स लिखने चाहिए, ए ओ बी या बी ओ ए। मैं तो मानूंगा कि ये करेक्ट तरीका है, ये दोनों। एंगल ओ ठीक है, करेक्ट है, लेकिन इतना ऑफिशियल नहीं। ठीक है, सो समझ गए एंगल। अच्छा, ओ ए और ओ बी को हम बोलेंगे आर्म्स, आर्म्स ऑफ द एंगल। और ये जो पॉइंट ओ है उसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, लेट्स गो है। अच्छा, एंगल के इंटीरियर में जो जगह है, ये जो शेड की गई है यहाँ पे, उसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ये पॉइंट पी इंटीरियर में, ये जो पॉइंट क्यू है वो ऑन द साइड ऑफ एंगल, ऑन द साइड, ऑन द साइड और ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, एंड पॉइंट आर है एक्सटीरियर में, पॉइंट आर एक्सटीरियर में। मेजर ऑफ एन एंगल, तो ये एंगल को मेजर कैसे करते हैं? एंगल को मेजर किया जाता है एक यूनिट में जिसको बोलते हैं डिग्रीज। तुम्हें तुम्हारे कंपास बॉक्स तुम्हारे पास अगर होगा तो कंपास बॉक्स में एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। प्रोटेक्टर नहीं, ठीक है, प्रोट्रैक्टर। कुछ लोग उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। प्रोटेक्टर तो मतलब जो प्रोटेक्ट करता है, बॉडीगार्ड। हम कोई बॉडीगार्ड की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोट्रैक्टर, ये प्रोट्रैक्टर क्या है? ये प्रोट्रैक्टर एक सेमी सर्कुलर डिवाइस है। ठीक है, सेमी सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसपे यहाँ पे ज़ीरो होता है और यहाँ पे सारे एंगल्स ऐसे मार्क्ड होते हैं। ये ज़ीरो या फिर ओरिजिन को तुम वर्टेक्स पे रखते हो और या तो ये वाले साइड पे या तो ये वाले साइड पे वन ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल रखते हो, डिपेंड एंगल कहाँ पे सिचुएटेड। और जो दूसरा आर्म होता है वो सपोज यहाँ से पास कर रहा है, सो दिस इज बेसिकली मेजर ऑफ एन एंगल। तो यहाँ पे तुम देखोगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे सब है। यहाँ पे बीच में 90 होता है। ठीक है, और इधर भी 0 होता है, 0, 10, 20, 30। तो फिर तुम देखोगे डबल डिजिट क्यों है इसमें? डबल डिजिट इसलिए बिकॉज एंगल का जो ओरिएंटेशन है वो लेफ्ट की तरफ ओपन होने वाला भी हो सकता है, राइट की तरफ ओपन होने वाला भी हो सकता है। तो इसके लिए दोनों तुम्हें मेजरमेंट दिए हैं दोनों साइड पे, ताकि एक्यूट एंगल अगर लेफ्ट फेसिंग हो तो तुम ये वाले यहाँ के डिग्रीज यूज करो, अगर एक्यूट एंगल राइट फेसिंग हो तो तुम यहाँ के डिग्रीज यूज करो। आई होप तुम्हें प्रोट्रैक्टर तुमने देखा ही है, तुमने यूज भी किया है। ये तो 6th 7th में ही सिखा देते हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट टॉकिंग गिविंग यू मच आइडिया अबाउट प्रोट्रैक्टर, बट या प्रोट्रैक्टर पे प्रोट्रैक्टर पे जो मार्किंग्स होते हैं, those markings are basically units of measuring angle and those units are degrees। और उसका जो symbol है वो एक ऐसा छोटा सा सर्कल है। so suppose I want to write 30 डिग्री, I will write 30 और उसके ऊपर ऐसा छोटा सर्कल बना दूंगा। ठीक है, सो ये डिग्री क्या होता है? सो इट इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन फ्रॉम वन आर्म टू द अदर, एक आर्म से दूसरे आर्म। ये जो तुम्हें एरो दिख रहा है ना, इसका मतलब ये जो ओ बी आर्म है वो ओ ए से ऐसा रिवोल्यूशन करके वहां पे पहुंचा है, घूम के वहां पे पहुंचा है। तो कितना घूमा है, दैट अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, दैट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। जितना ज्यादा घूमेगा उतना बड़ा एंगल होगा। तो कितना घूम सकता है? सो मैक्सिमम एंगल जो हम देखने वाले हैं वो है 360 डिग्री। ठीक है, अगर रे ओ ए पोजिशन से शुरू करेगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये साइड ऐसे घूमते जाएगी, ठीक है, और एक पूरा रिवोल्यूशन करके वापस ओ ए पे आ जाएगी, तो हम बोलेंगे कि any ray which has rotated in this manner has rotated through 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब किसी भी रे का वन कंप्लीट रिवोल्यूशन।
वो रे यहाँ पे थी और फिर घूम के वापस यहीं पे आ गई, मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, सो 360 डिग्री इज बेसिकली कंप्लीट एंगल, इसको याद रखना। ये है 360 डिग्री का साइन। अच्छा, डिग्रीज के भी सब पार्ट्स होते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर के अंदर क्या होता है, 10 मिलीमीटर्स होते हैं। वैसे 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 मिनट्स का ये सिंबल है, 60 के ऊपर 1 डैश। सेकेंड्स का ये सिंबल है, 60 के ऊपर 2 डैश, 60 सेकेंड्स। इसके ऊपर तुम्हें ज़्यादा कोई क्वेश्चंस है नहीं, तुम्हारे नॉलेज के लिए है। हाँ, डेफिनेटली आगे हायर स्टैंडर्ड्स में ये काम आएगा तुमको। टाइप्स ऑफ एंगल देख लो। राइट एंगल, राइट एंगल का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जिस जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री है वो राइट एंगल है। तुम्हें पता ही होगा ये बात, ये सारी बातें बेसिक चीजें हैं जो तुमने पढ़ी है ऑलरेडी। तो एंगल ए ओ बी 90 डिग्री लिखना सही है। अच्छा, कोई बोलेगा कि सर एंगल बी ओ ए 90 डिग्री लिखूंगा तो चलेगा क्या? डेफिनेटली चलेगा, ये भी सही है। ठीक है, एक्यूट एंगल, क्यूट क्यूट होता है ये एंगल, काफी क्यूट है ये। ठीक है, acute angle is having measure less than 90 डिग्री, ऑलवेज लेस, 0 से 90 के बीच में। ठीक है, AOB acute एंगल है यहाँ पे, इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ऑप्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से छोटा होगा। ठीक है, अगर ये 180 हो जाता तो ये ऐसा दिखता, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे O, यहाँ पे A, यहाँ पे B। इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये स्ट्रेट एंगल नहीं है, ये ऑप्ट्यूस है। ऑप्ट्यूस मतलब स्ट्रेट एंगल से छोटा, मतलब ये जो आर्म है ये इतना स्ट्रेट नहीं रहेगा। हाँ, बट 90 से बड़ा ही रहेगा। सो 90 और 180 के बीच वाले एंगल को ऑप्ट्यूस एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल अभी बता रहा था, स्ट्रेट लाइन का जो मेजर है एंगल का वो 180 डिग्री है, हमेशा याद रखना। AOB स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। तो 180 और 360 के बीच में कहीं भी जो एंगल होते हैं वो ये जो बाहर वाला एंगल बता रहे हैं, द ग्रेटर एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स नाम याद रखना, रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल अभी हमने देखा 360 डिग्री, जो एक्चुअली यहाँ पे और एक एरो होना चाहिए और यहाँ पे और एक मार्किंग होनी चाहिए बी। तो ओ ए और ओ बी एक ही लाइन पे है। ओ बी पूरा घूम के एंटी क्लॉकवाइज वहीं पे ओ ए के ऊपर आ गया, मतलब उसने 360 डिग्री रिवोल्यूशन किया, रोटेशन किया। इक्वल एंगल्स, टू एंगल्स हैविंग द सेम मेजर आर कॉल्ड इक्वल एंगल्स। दो एंगल इक्वल हो सकते हैं, उनका मेजरमेंट सेम हो सकता है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते इसको। नोबडी नोज दिस, many people don't know this, not nobody, many people know this also. Bisector is basically one line which cuts the angle or divides the angle into two equal parts. So here, as you can see, OC is one line which is exactly in middle of the space between OA and OB, that is angle AOB. The line or ray OC, not line but ray OC divides the space between OA and OB, that is angle AOB, in two equal parts. One equal part is this much, that is angle AOC, and the other equal part is this much, that is angle BOC. And these two parts are equal to each other. Angle AOC is equal to angle BOC. So we can say that this ray OC is dividing the angle AOB into two equal parts. Angle AOB is being divided into two equal parts, which is angle AOC and angle BOC, by ray OC. And that's why we can say that OC is angle bisector. OC is angle bisector of angle AOB. एंगल बाइसेक्टर समझ में आया?
बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये AOC और BOC दोनों एंगल AOB के हाफ है, ये भी बिल्कुल सही है। AOC एंड BOC दो छोटे पार्ट, ये पूरे एंगल के हाफ से इक्वल है। अगर पूरा एंगल लेट्स से 50 डिग्री है तो AOC और BOC 25 डिग्री हो, करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर अब तक नहीं पता है तो समझ लो। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनका सम 90 डिग्री होता है। Two angles are called complementary if their sum of their measures is 90 degree. So as you can see in this two diagrams, in this diagram, which not two diagrams, one diagram, angle AOC and angle BOC, they both add up to give 90 degree. They both add up to give 90 degree, right? So it's not necessary that they should be having a common vertex. They can be separate also. Like if I draw an angle, let's say this angle is PQR, which is 30 degree. And if I draw another angle, XYZ, which is 60 डिग्री। अब देखो ये दोनों एंगल अलग अलग है, उनके वर्टेक्स अलग है, उनके रेज अलग है, ये तो एक ही साथ है, उनका वर्टेक्स कॉमन है, फिर भी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। और यहाँ पे भी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज एंगल PQR प्लस एंगल XYZ कितना होता है, 90 होता है। तो दो अलग अलग वर्टेक्स वाले एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। These two are also complementary, PQR and XYZ. BOC and AOC are also complementary. Complementary मतलब उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, चाहे उनका वर्टेक्स सेम हो या नहीं हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं जब उनका सम 180 डिग्री होता है। The two angles are known as supplementary if their sum is 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो सप्लीमेंट्री एंगल तुम्हें दिखाए हैं, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ऐसे जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिसके कॉमन वर्टेक्स होते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल, इनको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है जो हम पढ़ने वाले हैं, लीनियर पेयर। लीनियर वर्ड कहां से आया है? लीनियर वर्ड आया है लाइन से, LINE, लाइन। तो एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे, और एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होता है, एंगल 180 डिग्री, इसलिए दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। सो लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होती है, लेकिन हर एक सप्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर लीनियर पेयर होना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, सपोज वी हैव वन एंगल ओवर हियर which is 60 degree. We have another angle which is 120 degree. Are they linear pair? Are they lying on the same line? Do they have common vertex? No. This angle is ABC. This angle is PQR. ये दोनों अलग अलग एंगल है। What is their sum? Their sum is 180 degree. So they are supplementary. These two angles are supplementary. But are they linear pair? No. So these two angles are not linear pair. Not linear pairs, but they are supplementary. Here, they are supplementary as well as linear pair. They are supplementary as well as linear pair. Correct? So two angles are called supplementary if their sum is 180 degree. And if they have a common vertex, they will also be known as linear pair. अभी हमको यही पढ़ना है आगे।
लेकिन तुम्हें ये डिफरेंस अभी मैं बता दूं, ये बहुत बहुत जरूरी है। लीनियर पेयर से मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, तुम भी यहाँ पे लिख लो। ऑल लीनियर पेयर्स आर supplementary but all supplementary angles are not linear pair। सारे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते ही हैं। ऑल लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री, जैसे यहां पे। बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे ये वाले, लीनियर पेयर नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, अभी याद रखना इनको। ये सब तुम्हारा ज्योमेट्री का ना कोर कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। एंगल रिलेशंस, सबसे पहले एडजेसेंट एंगल। तो ये वर्ड एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है? एडजेसेंट को अगर तुम इसका मीनिंग अगर चेक करोगे डिक्शनरी में, तो तुम्हें पता चलेगा द वन विच आर बिसाइड्स वन अनदर। द वंस विच आर बिसाइड्स वन अनदर, मतलब एक दूसरे के बाजू में जो चीजें होती है उसको एडजेसेंट बोलते हैं। बाजू में, सामने और बाजू में बहुत फर्क होता है। ठीक है, बाजू में जब कोई चीज होती है तो हम उससे कुछ एक चीज शेयर करते हैं। जैसे तुम्हारे घर के बाजू में कौन रहता है और तुम्हारे फ्लैट के सामने कौन रहता है, ये क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो तुम्हारे घर के या फ्लैट के बाजू में दूसरा फ्लैट है, तुम्हारे जो नेबर है, बाजू वाले नेबर, वो बाजू वाले नेबर के साथ तुम्हारी एक वॉल शेयर हो रही है, राइट? और जो तुम्हारे ऑपोजिट नेबर है, ऑपोजिट, उनके साथ तुम्हारी कोई वॉल शेयर नहीं हो रही। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट में ये फर्क है, एडजेसेंट के साथ कोई वॉल शेयर होगी हमेशा। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स का भी ऐसा है। एडजेसेंट एंगल क्या क्या शेयर करते हैं, ये जरा ध्यान से देख लो। इनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। देखो यहाँ पे ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ए ओ सी एंड बी ओ सी। इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। इनका एक कॉमन आर्म भी होता है। ये ओ सी देख रहे हो बीच में, ए ओ सी और बी ओ सी, ये दोनों ओ सी को शेयर कर रहे हैं। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म कौन से हैं? ओ ए और ओ बी। ओ ए और ओ बी ओ सी के दोनों तरफ होंगे। दोनों तरफ मतलब एक राइट की साइड, एक लेफ्ट की साइड। ये है एडजेसेंट एंगल्स का कैरेक्टरिस्टिक। वैसे इतना कुछ टेक्निकल नहीं है ये, तुम एडजेसेंट एंगल्स का पिक्चर देख के तुरंत बता दो ये तो एडजेसेंट एंगल्स है। अच्छा, मैं तुम्हें भी पूछता हूं, तुम्हें क्या समझ में आया? क्या यहाँ पे लेट मी इरेज दिस वन। ठीक है, क्या इस फिगर में तुम्हें कोई एडजेसेंट एंगल दिख रहा है? क्या है यहाँ पे एडजेसेंट एंगल? प्लीज आंसर योरसेल्फ। डेफिनेटली है। AOC और BOC एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि उनका कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है OC, और कॉमन आर्म के राइट और लेफ्ट साइड में दोनों आर्म्स है एंगल्स के, राइट? इसलिए इनको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो मतलब और एक चीज हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि ऑल लीनियर पेयर्स, ऑल, प्लीज नोट कर लेना ये सारी चीजें। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो तुम। द बेस्ट पार्ट, all linear pairs are adjacent angles। all linear pairs are adjacent angles, और all linear pair form adjacent angles। सही है? ठीक है, चलो लीनियर पेयर अभी हमने पढ़ लिया। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, वो क्या है? टू एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, लेकिन कैसे वाले? देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं कब? इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रेज। नॉन कॉमन आर्म कौन से है यहाँ पे? नॉन कॉमन आर्म है OA और OB। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म OA और OB ऑपोजिट
रेज बनाते हैं, ऑपोजिट रेज। ओ ए राइट की तरफ जाता है, ओ बी लेफ्ट की तरफ। ठीक है, जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो दो ऑपोजिट रेज बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लीनियर पेयर को ऐसे एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर बोलते हैं। ये एक टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे याद रखो, ना डेफिनेशन तुम्हें पूछने वाले हैं। हाँ, लेकिन कभी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू या कुछ ऐसे, अभी तो पेपर पैटर्न चेंज हुई है, तो दे मे आस्क यू सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन अगर दिमाग में है तुम्हारे तो बहुत अच्छी बात है। सो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी forming a linear pair if their non-common arms are opposite rays। ये प्लीज इसको याद रखना। ओके, सबसे पहला प्रूफ ज्योमेट्री का तुम्हारे सामने आ गया, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरम। थ्योरम नंबर 1, if a ray stands on a line then sum of the adjacent angle formed is 180 degree। If a ray stands on a line, what do you mean by a ray stands on a line? Stands मतलब vertically stands, ठीक है। वर्टिकली मतलब ये सीई भी हो सकता है, सीडी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट कैसे प्रूव किया है इन्होंने कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे हमने एक रे बनाई, ठीक है, तो इन दोनों रे के दोनों साइड पे जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, मतलब ये लीनियर पेयर बनेंगे। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है, गिवन। गिवन गिवन मतलब क्या होता है? गिवन मतलब दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है गिवन इंफॉर्मेशन? अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी such that angle ACD and angle BCD are formed. Can you see angle ACD? Can you see angle ACD? I will show you. This is angle ACD. Can you see angle BCD? This is angle BCD. ठीक है, BCD। ओके, हमें प्रूव कर रहे हैं दोनों का सम 180 डिग्री है। सो एक ये गिवन लिख दिया, जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास थियरम के हिसाब से। उसके बाद हमने लिखा टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब अगर यहाँ पे बोला है कि प्रूव दैट, तो हम टू प्रूव लिख सकते हैं इजीली, लेकिन यहाँ थियरम में बोला नहीं। लेकिन इजी है इसका मीनिंग समझना कि एडजेसेंट एंगल दिए हुए एक स्ट्रेट लाइन पे उनका सम 180 डिग्री है, ये प्रूव कर रहा है। मतलब ACD प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ हेल्प चाहिए। We will take a help of a construction. We'll draw a construction, we'll make a construction such that CE is perpendicular to, ये जो साइन दिख रही है ना तुम्हें, ये साइन का मीनिंग क्या है? ये साइन का मीनिंग है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब पता है तुम्हें? किसी भी लाइन पे अगर दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे और वो 90 डिग्री बनाएगी हमारी गिवन लाइन से। सपोज ये गिवन लाइन है ए बी, और ये जो मैंने लाइन बनाई है वो है पी क्यू। सो यहाँ पे पी क्यू और ए बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है। सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। Okay, so here PQ is perpendicular to AB. That means PQ is meeting line AB at point Q and making an angle of 90 degree with line AB. So angle PQB or angle PQA is 90 degree. So that is the meaning of perpendicular. So this perpendicular line which you see in the construction is very, very essential. Otherwise we cannot prove that the sum of two linear pairs uh, or sum of two adjacent angle on a straight line is 180 degree. So CE is our construction. Okay, and now we have to write the proof. So I will show you how to write the proof. After I write the proof, you can pause the video and you can also write the proof, but don't copy. Try to write the proof yourself after understanding how to write it.
Okay, let's go. So see, what is angle BCD? Angle BCD. We have to prove that BCD plus ACD is 180, right? So what is BCD? BCD is angle BCE minus angle ECD. Can you visualize this? Let me help you visualize. So I have written angle BCD equals to angle BCE. What is BCE? This angle, this one. This is BCE minus ECD. What is ECD? This part. So I have subtracted this blue part from the whole angle BCE. BCE में से मैंने ECD को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो वो ये जो व्हाइट पार्ट है, खाली पार्ट, ये बच जाएगा, राइट? ये व्हाइट पार्ट क्या है? एंगल BCD. सो BCD को मैंने BCE माइनस ECD लिखा. अब तुम सोच रहे होगे सर ये आपने क्यों लिखा है सर? ये मैं बताऊंगा तुम्हें, यही प्रूफ का पार्ट है, ठीक है? अच्छा, सिमिलरली आई विल राइट एंगल ACD एज, ACD को मैं लिखूंगा एंगल ACE, एंगल ACE प्लस एंगल ECD, ठीक है? ACE कौन सा एंगल है? ये वाला, राइट? ये एंगल है ACE. उसमें अगर मैं ECD ऐड करता हूं, मतलब ये ब्लू वाला पार्ट मैं ऐड कर देता हूं, तो क्या मिलेगा? ACD, बड़ा एंगल ACD. तो मैंने BCD और ACD को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा, ठीक है? अब देखो, और एक चीज मुझे लिखनी पड़ेगी, बट एंगल ACE, ये जो एंगल ACE है, इज इक्वल टू एंगल BCE, ये वाला एंगल BCE, ये दोनों इक्वल है. कितना है ये दोनों का मेजर? 90 डिग्री. क्यों है ऐसा? सिंस, तो ब्रैकेट में मैंने रीजन लिखा, सिंस EC इज परपेंडिकुलर टू AB. क्योंकि EC AB से परपेंडिकुलर है, इसलिए ECB या BCE और ACE ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों का मेजर कितना होगा? 90. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 डिग्री होंगे, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, ठीक है? समझ में आया? अब देखो, अब हम ये जो स्टेटमेंट्स हमने लिखे थे BCD और ACD को स्प्लिट करके, जो एंगल्स के फॉर्म में हमने लिखे थे, हम उनको ऐड कर देंगे. तो क्या लिखेंगे? एडिंग 1 and 2. सो एंगल BCD प्लस एंगल ACD, ठीक है? दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा? एंगल BCE माइनस एंगल ECD प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD, ठीक है? अब यहां पे क्या होगा? माइनस एंगल ECD और प्लस एंगल ECD कट जाएगा, तो क्या बचा? BCE प्लस ACE. लेकिन BCE और ACE कितना है? 90 और 90, तो 90 प्लस 90 ऐड होके कितना मिलेगा हमें? 180 डिग्री. हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. तो हमने ये प्रूव किया कि द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, और द सम ऑफ लीनियर पेयर्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. ये इसका प्रूफ है. तो प्रूफ कैसे लिखना, ये फर्स्ट प्रूफ, 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट प्रूफ मैंने तुम्हें समझाया, जो बहुत बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट चीज है 9th के ज्योमेट्री के हिसाब से. और 9th में ज्योमेट्री सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, इसलिए तुम समझ लो कि प्रूफ कैसे करना है, कैसे लिखना है. कुछ बच्चे जो ये नई कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं, मैंने उनके पेपर देखे हैं, व्हेन दे आर आस्क्ड टू प्रूव एंड दे डोंट नो हाउ टू प्रूव, वो क्या लिखते हैं पता है? बिकॉज वी नो इट. वो लोग, उनको पूछा गया कि प्रूव करो कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री, तो बोलते हैं वी नो इट. ऐसे मत लिख के आना एग्जाम में वी नो इट.
तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, और ये जो मैंने मेथड दिखाई इस मेथड से प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, अभी मेथड्स पे भी काफी डिस्कशन होता है। इज देयर ओनली वन मेथड फॉर प्रूविंग सर्टेन थिंग? नो, देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स। ठीक है, तो कोई बच्चा ऐसा लिख के आता है कि ऐसा ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन करके बताता है कि ये 60 डिग्री है। ये वाला मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कैसे कैसे फुलिशनेस होती है पेपर्स में, मैं वो दिखाता हूँ। ये 60 डिग्री है और ये 120, प्रॉपर बाकायदा कंस्ट्रक्शन करके आता है, इसलिए इनका सम 180 है। ऐसे नहीं लिख सकते तुम, ठीक है? ये प्रूफ नहीं हुआ, ये तो तुमने फिजिकली ड्रॉ करके बताया। बट जब थियरम तुम्हें प्रूव करने के लिए बोलते हैं, कोई प्रूफ मांगते हैं तुमसे, तुम्हें ऐसे स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली उसको समझाना पड़ेगा, नहीं तो उसको प्रूफ नहीं बोलेंगे। ठीक है, और तुम्हें मार्क्स 0 मिलेंगे। इसलिए समझ लो, ज्योमेट्री में बहुत इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ अभी कि कैसे दे हाउ इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू राइट एन आंसर। ठीक है, सो ये प्रूफ हमने देख लिया। चलो, नेक्स्ट और एक प्रूफ आया है। ये प्रूफ पहले वाले प्रूफ से रिलेटेड है, इसलिए इस प्रूफ को हम स्पेशल नाम दे रहे हैं। इसको बोलते हैं कोरोलरी। कोरोलरी हमने पढ़ा था ना यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। कोरोलरी, कोरोलरी मतलब, कोरोलरी का अगर तुम मुझे डिक्शनरी मीनिंग पूछोगे तो मैं गूगल में सर्च करके तुम्हें दिखाऊंगा। लेट्स चेक कोरोलरी का डिक्शनरी मीनिंग क्या है। ये देखो, corollary, a proposition that follows from and is often appended to one or already proved। मतलब जो हमने प्रूफ ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, उसको जो फॉलो करने वाला प्रपोजिशन है उसको कोरोलरी बोलते हैं। तो अभी हम कोरोलरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी। ये कोरोलरी है। क्या कोरोलरी है? सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे अगर एक लाइन है और उस पर एक पॉइंट लेके हम अलग अलग रेज बनाएंगे, ओ ई, ओ डी, ओ सी, तो ये सारे जो एंगल बन रहे हैं, एंगल बी ओ ई, एंगल डी ओ ई, एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ सी, ये सारे एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। ये सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ कोरोलरी। अब मैंने इसके पहले जो प्रूफ तुम्हें समझाया उसमें भी तो यही बोला है कि अगर दो एंगल बन रहे हैं एक लाइन पे, एडजेसेंट एंगल, उनका सम 180 डिग्री। यहाँ पे दो नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं, तो उनका सम भी 180 डिग्री होगा। इसलिए इसको कोरोलरी बोला है, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रूव किया है उसी को, उसी का एक एक्सटेंशन है ये। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी। तो देखो, कैन आई से दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये प्रूफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस, तो रीजन क्या दूंगा मैं? लीनियर पेयर। कौन सी लीनियर पेयर समझ में आया? एंगल AOC, ये वाला एंगल, ये AOC। ठीक है, और कौन सा एंगल है? एंगल BOC, ये वाला एंगल। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये वाला एंगल। ठीक है, तो AOC और BOC ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वो लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर क्यों है और लीनियर पेयर का सम 180 होता है, ये वापस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोरोलरी प्रूव कर रहे हैं। ऑलरेडी प्रूव्ड चीज को के ऊपर बेस्ड प्रपोजिशन को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एंगल AOC प्लस ये जो एंगल BOC है ना, उसको मैं ब्रेक करूंगा, एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये BOC को, ये पूरा जो एंगल BOC को मैंने ब्रेक करके, ये जो छोटे छोटे एंगल्स बन रहे हैं BOC के अंदर, उसके फॉर्म में मैंने लिख दिया। बस हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ है
कि ये सारे एंगल्स का सम जो एक स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड पे बन रहे हैं, वो उनका सबका सम 180 डिग्री होता है। दैट्स व्हाट यू हैड टू प्रूव। ठीक है, तो हो गया, हेंस प्रूव्ड। राइट, लेट्स गो अहेड। ओके, और एक कोरोलरी है, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के अराउंड जो पूरा एंगल बनता है उसका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये भी एक कोरोलरी है, जो पहले वाला प्रूफ हमने लीनियर पेयर वाला किया था, सम ऑफ लीनियर पेयर, वैसा ही है। ठीक है, एक पॉइंट जो गिवन में देखो क्या लिखा है, अ पॉइंट ओ इज गिवन टू यू, रे ओ ए, रेज ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई। कौन सी रेज है? 5 रेज है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई। मेक एंगल्स अराउंड ओ। ये सारी जो रेज है वो एक एंगल बना रही है, वो सारे बहुत सारे 5 एंगल बना रही है। ठीक है, और ये सारे एंगल्स का सम कितना है? 360। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? वी ड्रू अ रे ओ एफ ऑपोजिट टू ओ ए। किसी भी एक रे को ले लो और उसके ऑपोजिट एक रे बना दो। ठीक है, जैसे एक रे ओ ए को मैंने ले लिया और उसके ऑपोजिट में रे ओ एफ को कंस्ट्रक्ट कर दिया। सो वी नो दैट, प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि we know that opposite rays make a line. We know that opposite rays make a line. Opposite rays क्या बनाती है? एक लाइन बनाती है। Therefore FOA is a straight line. FOA क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, therefore एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल FOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या लिखा है पता है? ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन मतलब रीजन, क्यों है ऐसा, क्यों तीनों का सम 180 है? क्योंकि दे आर द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर सम विल ऑलवेज बी 180 डिग्री, जो हमने इससे पहले वाले प्रूफ में, थियरम में प्रूव किया है, कोरोलरी में हमने प्रूव किया है। सिमिलरली एंगल FOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOE विल ऑल्सो बी 180 डिग्री। ये जो लाइन है FOA, उसके नीचे भी तो एंगल बन रहे हैं, ये वाला, इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। राइट, ठीक है। Therefore ये इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें? एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल FOC प्लस एंगल FOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOE इज इक्वल टू 180 प्लस 180। दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल FOC प्लस FOD। देखो एक्चुअली ये तो कंस्ट्रक्शन था, तो FOC प्लस FOD कौन सा होता है? ये पूरा एंगल होता है ना, इसका नाम क्या है? COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOE इज हाउ मच? 360 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, याद रखो। राइट, तो इजी है प्रूफ, इजी है समझना।
अगर तुम्हें इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लुक एट इट अगेन, फिर से एक बार देखो, समझो, समझने की कोशिश करो। बहुत बच्चों के लिए ना ये लॉजिकल विजुअलाइजेशन जो है ज्योमेट्री का, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, और बहुत बच्चों के लिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मेरी जो अभी 10th स्टैंडर्ड की बैच है, जो तुम्हारे सीनियर्स है अभी बेसिकली, उसमें आई थिंक 90% स्टूडेंट्स दे आर सो गुड विद ज्योमेट्री। एंड मुझे नाइन्थ में लास्ट ईयर पता ही नहीं चला कि कब मैंने ज्योमेट्री सिखा दिया, इतना इजी करा उन्होंने मेरे लिए पूरा प्रोसेस, बिकॉज दे वर really efficient with geometry. Their visualization power was very, very strong. Even they scored very good marks. But I cannot say about this about every batch. So मुझे नहीं पता तुम्हारा ज्योमेट्री या तुम्हारा विजुअलाइजेशन पावर कितना स्ट्रांग है। हाँ, बट हमारे पास एक एडवांटेज है, उनके पास नहीं था ये एडवांटेज। वी हैव दिस एडवांटेज दैट आई हैव गिवन यू रिकॉर्डेड स्टफ एंड दैट टू अपडेटेड। उनके पास जो स्टफ था, जो मैंने उनको बताया था, दैट वाज लाइक व्हाट आई वाज टीचिंग सिंस पास्ट 8 years, यू कैन से। उसमें थोड़ा बहुत अपडेटेशन मैंने किया था। बट तुम्हारे पास जो अभी ये कंटेंट में दे रहा हूँ, ये सारे प्रूफ जो मैं सिखा रहा हूँ, इतनी डिटेल में मैंने उनको नहीं पढ़ाया था। प्लस तुम्हारे पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, सो यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे प्रूव किया है, मैं कैसे स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, कैसे स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन लिखता हूँ, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं प्रूफ में, राइट? कंस्ट्रक्शन, गिवन, टू, प्रूव, ये सब का मतलब क्या है। तुम्हें और एक चीज बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज तुम्हारे एग्जाम में आती है, तो डायग्राम, गिवन, टू, प्रूव और कंस्ट्रक्शन इतना बनाया ना अगर तुमने, तो तुम्हें 1 मार्क मिल जाएगा। अगर ये नहीं बनाया तो 1 मार्क कट जाएगा। मतलब गिवन, टू, प्रूव, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम, इसका 1 मार्क होता है अगर ये प्रॉपरली लिखा है तो, और बाकी मार्क्स होते हैं प्रूफ के। ठीक है, सो इसको याद रखना। ऑल राइट, अब देखो, we have come to a converse of first theorem। ये theorem 2 है। तो हमने जो theorem 1 पढ़ी थी, क्या तुम्हें याद है वो theorem 1 क्या थी? The sum of the angles formed on a straight line, that is the sum of the angles on a linear pair, is 180 degree। ठीक है, और उसकी 2 corollary हमने पढ़ी। और ये जो सेकेंड थियरम है, ये कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थियरम है। कन्वर्स मतलब रिवर्स, उल्टा। कन्वर्स क्या है इसमें? अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वो लीनियर पेयर ही बनाते हैं। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो वो लीनियर पेयर ही बनाएंगे। अब ये थोड़ी सी वियर्ड सी थियरम है ये, ठीक है, और एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल मिनिमल है, समझ लो। ऐसे ये थियरम ऐसे पूछते नहीं है वो लोग, बट फिर भी हमको करनी पड़ी। ठीक है, सो वी हैव टेकन टू एडजेसेंट एंगल्स, AOC, फर्स्ट एंगल इज AOC, एंड द सेकंड एंगल इज BOC, AOC एंड BOC, such that AOC plus BOC is 180 degree. To prove that OA and OB are in the same straight line, that is AOB is a straight line, हमें ये प्रूव करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कैसे प्रूव करना है हमको? एक्चुअली हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है OA और OB, ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तभी ये जो दोनों एंगल है AOC और BOC, उनका सम 180 डिग्री होगा। इसलिए हमें AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना जरूरी है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन किया है, इफ पॉसिबल लेट AOB be not a straight line, then draw AO to D so that AOD is a straight line। तो वो लोग ने एक यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक there is one term in mathematics, contradiction। Yes, they have used the method of contradiction। contradiction का मतलब होता है कि सपोज मैं एक चीज अज्यूम करता हूं
कि ये ट्रू है और फिर उसी को मैं फॉल्स प्रूव कर देता हूँ, तो जिससे मेरा जो एक्चुअल प्रूफ है वो एक्चुअल थियरम है वो प्रूव हो जाएगी। तो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन किया कि AOB को स्ट्रेट लाइन नहीं माना, लेट AOB नॉट अ स्ट्रेट लाइन, देन ड्रॉ AO टू D। ठीक है, AO को मैंने एक्सटेंड करके D तक ऐसा डॉटेड लाइन बनाया, कंस्ट्रक्शन किया, और मैंने AOD को स्ट्रेट लाइन मान लिया, जो बिल्कुल नहीं है, AOD स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट मैंने मान लिया। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दैट AOD इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बट हाउ, दैट इज द होल की। लेट्स सी। ओके, सो अगर इफ, प्रूफ मैं लिख रहा हूं, प्रूफ इफ AOD is a straight line, which is our assumption, ठीक है, therefore angle AOC plus angle COD 180 डिग्री होगा। Why? लीनियर पेयर, राइट। अगर AOD स्ट्रेट लाइन है तो उसमें बनने वाले दोनों एंगल मतलब AOC और COD का सम 180 डिग्री होगा। बट इट इज गिवन दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन देखो ये रहा, राइट। देयरफॉर अगर ये दोनों 180 डिग्री है तो ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2। सो फ्रॉम 1 and 2 angle AOC plus angle COD is equal to angle AOC plus angle BOC, करेक्ट। तो दोनों साइड से ये AOC कट जाएगा एंड व्हाट विल बी लेफ्ट विथ एंगल COD is equal to एंगल BOC। बट क्या तुम्हें डायग्राम से लग रहा है कि COD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला is it looking like a part of BOC? No. सॉरी, इज इट लुकिंग लाइक इक्वल टू BOC? क्या COD तुम्हें BOC से इक्वल लग रहा है? किसी भी केस में यहाँ पे COD और BOC इक्वल लग रहे हैं तुम्हें? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे देखो इसको, बट COD कैन नॉट बी इक्वल टू एंगल BOC। रीजन क्या देंगे? सिंस पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। याद है तुम्हें what we are invocating? We are using यूक्लिड्स ज्योमेट्री। पार्ट कभी भी होल से इक्वल नहीं होता, पार्ट हमेशा होल से छोटा होता है। लेकिन ये क्या लिख दिया हमने, COD और BOC इक्वल है। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने AOD को स्ट्रेट लाइन माना था, वो गलत था। देयरफॉर आवर assumption is wrong and AOD cannot be a straight line. Hence, AOB is a straight line. AOB straight line है, AOD नहीं। क्योंकि AOD अगर स्ट्रेट लाइन माना तो उससे ये प्रूव हुआ कि COD BOC से इक्वल है, लेकिन COD तो BOC से छोटा है और पार्ट कभी भी होल से इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग है और इसलिए AOD स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता और इसलिए AOB ही स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड इट। इसको आप पॉज करो, देखो, रिपीट करो और फिर लिखो इसको। बहुत जरूरी है इसको पूरा लिखना। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कन्वर्स थियरम विच यू आर स्टडिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लॉजिक को शार्पन करने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
The next kind of angles which we must know is are vertically opposite angles. So vertically opposite angles are always equal to each other and they are formed between two intersecting lines. यहाँ पे बोला है उसका जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा और टेक्निकली बोला है वो लोगों ने. Two angles are said to be a pair of vertically opposite angles when their arms form two pairs of opposite rays. ठीक है, तो ये एंगल बीओडी है, इसका एक आर्म है बीओ, दूसरा आर्म है ओडी. बीओ के ऑपोजिट वाली रे है ओए और ओडी के ऑपोजिट वाली रे है ओसी. ठीक है, तो एंगल बीओडी और एंगल एओसी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं. ठीक है, अब देखो और एक चीज यहाँ पे समझो. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अगर तुम्हें समझना है तो इजी वे में कैसे समझ सकते हो. तुमने ऑलरेडी ये 8th में पढ़ा है बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ. अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो पॉइंट पे वर्टिकली ऑपोजिट बनेंगे और ये जो शेप दिखेगा इट विल बी लाइक एन इंग्लिश अल्फाबेट एक्स. एक्स जैसा शेप जहां पे भी दिखता है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही होते हैं. तो यहाँ पे कितने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2. एंगल 1 और 2 एक दूसरे से इक्वल है. ठीक है, क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. फिर ये है एंगल 3 और ये एंगल 4. 3 और 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. ऑपोजिट है एक दूसरे से, एडजेसेंट नहीं है, इसलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं और दे आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका है, बट इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं. तो अगर तुम्हें बोला कि प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कैसे करोगे. बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं. ठीक है, सपोज ये है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4. वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ये प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे, देखो मैं पूरा फॉर्मली गिवन ये सब नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180 डिग्री. एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 180 डिग्री. क्यों, रीजन क्या है इसका. एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 क्यों है और एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. क्या है, लीनियर पेयर. एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल है. कौन सी एक लाइन है, सपोज ये लाइन का नाम है ए बी और ये लाइन का नाम है सी डी. दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तभी तो बनते हैं ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो 1 प्लस 2 180 क्यों है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन ए बी पे आता है. 2 प्लस 3 180 क्यों है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन सी डी पे आता है. ठीक है, तो ये दोनों का सम अगर 180 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 2 कैंसिल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. एंड ये प्रूव हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है. सिमिलरली हम 2 और 4 को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं. कैसे, मैं ओरली बताता हूँ, तुम्हें लिखना है. ये 2 प्लस 3 कितना होगा, 180. 3 प्लस 4 कितना होगा, 180. सो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 और 3 कट जाएगा दोनों साइड से, 2 इज इक्वल टू 4. ये भी प्रूव हो गया. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना बहुत ईजी है. प्लीज डू दिस थियरम विच आई जस्ट शो. यहाँ पे वो लोग ने वही प्रूव किया है विच वी आर नॉट गोइंग टू डू अगेन. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. सो ये वाला जो टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तुम्हें. पहले तो आई थिंक ये पूरे चैप्टर के लिए मुझे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थ्योरम्स के और इसके बेसिक जो टॉपिक्स है उसको कवर करने के लिए आई हैव टू make a couple of videos and then we'll go to the examples. I don't want to do it in a single video so that your concept gets cleared slowly. Okay, so parallel line और transversal से पहले हम लोग normal दो लाइन और एक intersecting common lines के बारे में बात करेंगे. ट्रांसवर्सल के बारे में, नॉन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, उसके बाद पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पे आएंगे. So this is going to be covered in the next video. See you in the next video. Bye bye.